स्टूडेंट्स नमस्कार। आप आज नवा टॉपिक करना है जी। और अपना जो न्यू टॉपिक है उसका नाम है ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਦੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ preparation of students preparation of ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ preparation of revaluation account। ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ABC, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 1 2 3 ਔਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਸ ਨੇ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਵੈਲੂਏਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਸਟ ਦੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ 4 ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ +1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸਟ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਐਸਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ +1 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਅਤੇ 2 ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਸਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ। ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਸਟਸ। ਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।
जे लाइबिलिटी विच डिक्रीज आ जाए, स्टूडेंट्स ध्यान रखना है असी कि जे साडे कोल एसिड विच इनक्रीज आई तो असी एसिड नूं डैबिट किया, जेकर साडे विच साडे कोल एसिड दे विच, ध्यान दिओ एक बार फिर सुनो, एसिड विच इनक्रीज आई तो एसिड नूं डैबिट किया, एसिड दे विच डिक्रीज आई तो एसिड नूं क्रेडिट किया। उल्ट करना है लाइबिलिटी दे केस विच, जे लाइबिलिटी दे विच की आ जे डिक्रीज आ जाए तो लाइबिलिटी नूं की करना है, असी डैबिट करना है। उल्ट करना है, वाइस वर्सा इन केस ऑफ लाइबिलिटी। ध्यान दिओ, एसिड विच इनक्रीज आई तो एसिड नूं डैबिट, एसिड दे विच डिक्रीज आई तो एसिड नूं क्रेडिट, तो लाइबिलिटी विच डिक्रीज आई तो लाइबिलिटी नूं डैबिट, तो लाइबिलिटी दे विच इनक्रीज आए तो लाइबिलिटी नूं क्रेडिट। ध्यान दिओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डैबिट टू लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिटर्स। इत्थे की आई, इनक्रीज इन लाइबिलिटी। हुण जेकर मैं प्यारे विद्यार्थियों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनावा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट साडा किवें बनेगा, देखते हैं जी। ऊपर लिखांगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। जे असी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होए तो लिखांगे बाई, सपोज मशीनरी च वाधा होया, बाई मशीनरी अकाउंट। ये की है, इनक्रीज इन एसेट्स। इत्थे की लिखांगे टू मशीनरी, ये की आएगा डिक्रीज इन एसेट्स। उल्ट वाइस वर्सा, फिर की लिखांगे इधर बाई क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। इधर की लिखांगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, की लिखांगे इनक्रीज इन लाइबिलिटीज। राइट। जेकर एसिड दे विच कोई कमी आती है, एसिड घटदा है तो डैबिट साइड ते 2 नाल लिखांगे, क्रेडिटर वधदा है तो एसिड साइड ते 2 नाल लिखांगे। एवें ही जेकर एसिड विच इनक्रीज आती है तो बाई वाली साइड ते, लाइबिलिटी विच डिक्रीज आती है तो बाई वाली साइड ते। कोई अनरिकॉर्डिड एसिड होए तो वह भी इधर लिखना है, अनरिकॉर्डिड एसिड। अनरिकॉर्डिड एसिड इज जस्ट लाइक ए इनक्रीज इन एसिड्स, क्योंकि असी इस नूं पहला रिकॉर्ड नहीं किया होया, इस नूं असी हुण रिकॉर्ड करांगे, इस वास्ते इनक्रीज। इधर की लिखांगे टू अनरिकॉर्डिड लाइबिलिटीज। ये एक तरह की की है इनक्रीज इन। बेटा जी नहीं समझ आ रही तो घबराने की कोई लड़ नहीं, दोबारा दस दिता जाएगा। जेकर हुण साडे कोल क्रेडिट साइड वध गई तो ए साइड ते की आएगा साडे कोल टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो जे ए साइड वध गई तो इधर की आएगा बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बेटा जी तुसी नोटबुक ते उतारोगे, इस नूं समझोगे, बुक्स लोगे तो तुहानूं कंसैप्ट क्लीयर होएगा, अदरवाइज नहीं क्लीयर होएगा। हुण मैं इस नूं एक एग्जाम्पल दे राही एलैबोरेट करांगा, तुहानूं समझाउण की कोशिश करांगा।
रीवैल्यूएशन अकाउंट किवें बनेगा, लेट्स सी। लिखांगे बाई, मान लो साडे कोल एसिड वध गया तो की लिखांगे, बाई मशीनरी अकाउंट इनक्रीज। सपोज ये 40,000 वधिया, क्रैडिटर घट गए यानी कि लाइबिलिटी घट गई, लिखांगे टू क्रैडिटर्स डिक्रीज। सपोज 20,000 दे, इत्थे लिखांगे बाई अनरिकॉर्डिड एसिड, कोई भी मान लो कंप्यूटर रिकॉर्ड नहीं किया, खरीदिया तो असी रिकॉर्ड नहीं किया, इहदा टोटल कितना आ गया, 1 लाख रुपए का। टू की लिखांगे जी, मशीनरी, मान लो मशीनरी में कोई कमी आ गई तो एक तरह की डिक्रीज हो गई, सपोज डिक्रीज हो गई 20,000 रुपया। टू क्रैडिटर्स, सपोज जोड़े क्रैडिटर्स ने वो इनक्रीज हो गए, वध गए, सानू ज़्यादा पैसे देने पे 40,000 रुपया, तो साढ़े कोल एक आ गया जी, साढ़े कोल टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। मान लो क्रैडिटर साढ़े होर वध गए, सपोज ये भी 20,000 दे वध गया, तो हम असी डिफरेंस लाँगे, क्रैडिट साइड साढ़े कोल ज़्यादा है और डेबिट साइड साढ़े कोल घट है, तो सानू प्रॉफिट हो गया। तो की लिखांगे, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। मान लो दो साढ़े कोल पार्टनर ने, तो की लिखांगे, एज कैपिटल अकाउंट ते बीज कैपिटल, बराबर बराबर ने 60,000 है तो इक्वली ने तो 20,000 आ जाएगा। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट नूं बनाने का तरीका। मैं उम्मीद करदा कि तुसी रिवैल्यूएशन अकाउंट नूं वधिया तरीके नाल समझ गए होगे। इस नूं एक बार बेटा जी दोबारा सुन लेना, दोबारा देख लेना, ताकि तुहानूं चंगी तरह नाल समझ आ जाए। जिन्हों स्टूडेंट्स नूं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ जाता है, उन्होंने आने वाले चैप्टर करने विच किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पैंदा। इस वास्ते आप जी ने इस नूं ध्यान नाल देखना है तो समझना है। तुहानूं जिहड़ी भी बुक लगी हुई है उस दे विच तुसी रिवैल्यूएशन अकाउंट नूं ध्यानपूर्वक देख लेना है, समझ लेना है। जिन्होंने चैनल नूं अजे लाइक नहीं किया, जल्दी लाइक कर दिओ। कल आपां फिर दोबारा मिलांगे, तद तक जय हिंद। इस नूं दोबारा करावांगे। जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो उसनूं जल्दी नाल सबसक्राइब भी कर दो जी।